Good afternoon, dear kids. Today we'll be doing our next topic, that is WBC, that is white blood cells. As we know, WBC are also called as leukocytes. Leukocytes. Leuko means what? Leuko means white because they don't have hemoglobin in them to give them a color red. So redness is not there. So they are white in color and hence they are called as leukocytes. So that's your point number one. Now, how they are different from RBC. The first is the RBC are red in color and they are white in color, and RBC consist of hemoglobin but they do not consist of hemoglobin. And again, RBC, when they get mature, their nucleus is absent, but here in WBC you will see that they have a well defined nucleus. Maybe they have it in lobes but they have the well defined nucleus. And further we will discuss about the number of WBC in your per cubic meter of blood. तो अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से लोगे तो आपके पर क्यूबिक मीटर मतलब एक मीटर क्यूब, एक आपके मीटर क्यूब ब्लड में अराउंड 4000 to 8000 यूजुअल रेट बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि 4000 से 8000 तक हमारे WBC प्रेजेंट होते हैं पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड. देन अब WBC की शेप क्या है? सो इफ़ यू कैन सी हियर, if you can see here, WBC are amoeboid shape. They are free shape. Why they are free shape? Because they can squeeze out from the blood capillaries. अब ब्लड में से आप WBC को हटा तो नहीं सकते हो, तो ब्लड में से जब वो स्क्वीज आउट करके आता है, दैट्स द रीजन दे हैव दैट amoeboid shape, free shape. They can produce pseudopodia. There is a spelling mistake here. It is pseudopodia. सूडोपोडिया मतलब जैसे सूडोपोडियम का मूवमेंट होता है, इट्स अ फ्री मूवमेंट. दे हैव अ फ्री शेप, दे हैव अ amoeboid shape, shapeless. They can move, they can squeeze out from the blood capillaries. Okay, so that's the reason they have this kind of shape. Next is based on the shape and the number of granules present and the number of nucleus present and the way the nucleus is present, the WBCs are divided into two major groups, that is granular and non-granular. WBCs are divided into two major groups, that is granular and non-granular. Clear? Okay. If we have granular here, you can see here granular, I have marked it here, granular मतलब क्या है कि जो WBC में अंदर आप बारीक से बहुत छोटे दाने देख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैन्यूल्स, जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं. तो दे आर कॉल्ड एज ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मिक WBCs. तो उसमें हम लोग के 3 टाइप्स हैं. ग्रैनुलर में हम लोग के 3 टाइप्स हैं एंड नॉन ग्रैनुलर में हम लोग के 2 टाइप्स हैं. ग्रैनुलर वी हैव न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils. न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स आपके WBC में सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ WBC जो आपके बॉडी में पाया जाता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स. अबाउट 62% ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी. WBC का अगर 100% कंटेंट लोगे तो उसमें से 62% इज दिस टाइप ऑफ WBC, दैट इज न्यूट्रोफिल्स. इट्स अ ग्रैनुलर WBC. ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स इज द मोस्ट अबेंडेंट, वी कैन कॉल इट एज. इट इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी. एंड हाउ इज द स्ट्रक्चर? फॉर द स्ट्रक्चर आई प्रिफर टू शो यू समथिंग here. If you can see here, these are the neutrophils. Okay, these are the neutrophils. What you can see here, the nucleus is with three lobes. So you can write 2 to 3 lobes or 3 to 4 lobes. Lobes का मतलब है एक गट्टा न्यूक्लियस का नहीं है, लेकिन यही न्यूक्लियस इस तरीके से लोब्स बनाया हुआ है, कंपार्टमेंट बना हुआ है. सो न्यूक्लियस इज विथ 2 to 3 लोब्स. सेकेंड, जैसे आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं. एंड थर्ड, अगर इसमें आप डाई आपको पता है कलरिंग एजेंट है. अगर आप न्यूट्रल डाई, व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रल डाई? न्यूट्रल डाई होता है जो आपके एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल को मिला के, इसको डाई को मिला के जो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल डाई. अगर आप न्यूट्रल डाई न्यूट्रोफिल्स के ऊपर डालोगे तो their granules will change their color. So that color may be your pink or dark blue. इस तरीके का कलर चेंज होता है. तो हम लोग को जब हम लोग को WBC में से अलग अलग टाइप ऑफ WBC निकालने होते हैं तो हम लोग डाई उसमें डालते हैं. तो जो आपका WBC पिंक कलर का हो जाएगा या डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स. तो ये डाइज, न्यूट्रल डाइज आर यूज टू चेक द न्यूट्रोफिल्स, कौन से न्यूट्रोफिल्स हैं.
ठीक है. सो पॉइंट नंबर 1 व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इज, I'll take my slide back. Okay. Point number 1, you have understood that the nucleus of neutrophil is 3 to 4 lobes. And point number 2, you got that their cytoplasm is granular. And point number 3, that if you stain them with neutral dyes, they'll change their color. ठीक है. एंड व्हाट इज़ अ फंक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रोफिल्स का, दैट इज़ दे एनगल्फ बैक्टीरिया. एंड इन योर साइंटिफिक टर्म, एनगल्फिंग बैक्टीरिया मतलब आप जैसे कोई चीज़, एक एनगल्फिंग का मतलब क्या है, उसको ग्रैब कर देना. कभी आपने देखा है कि आप छिपकली के सामने अगर कोई कीड़ा आता है तो वो कैसे उसको ग्रैब कर देती है. तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, आपके जर्म्स को, आपके बैक्टीरियाज को उसी तरीके से एनगल्फ कर देते हैं अपने अंदर और डिसॉल्व कर देते हैं. और इसी प्रोसेस को हम लोग का साइंटिफिक नेम है फेगोसिटोसिस. Phagocytosis, very important term. So you have to understand that this is called as phagocytosis, is the process where your neutrophils or WBC engulfs the bacteria inside. ठीक है. And then you have where they are produced. So they are produced in a bone marrow. We know that WBC and RBC are produced in the bone marrow, or they are produced in the spleen या लिम्फेटिक वेसल्स में. ये 3 जगह ही हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ पे हम लोग के पैदा होते हैं. तो बोन मैरो, बोन में आपके होते हैं. ठीक है. शैल वी जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट. ओके, नेक्स्ट हम लोग उसी में हैं, इसको कर रहे हैं टेबल को, जहाँ पे हम लोग डब्ल्यूबीसी को हम लोग ने मेजर डिवीजन दिया है, ग्रैन्युलर एंड नॉन ग्रैन्युलर. ग्रैन्युलर के 3 पार्ट्स हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स के बारे में अभी डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे इसिनोफिल्स के बारे में. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इसिनोफिल्स? लेट्स स्टार्ट. इसिनोफिल्स होते हैं आपके बॉडी में, जैसे बहुत ही कम रेशियो है उनका, जस्ट 2.3% ऑफ द होल WBC कंसिस्ट ऑफ इसिनोफिल्स. इसिनोफिल्स की खासियत ये है कि ये इनका न्यूक्लियस जो है, जैसे आपके न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा था, इट वॉज 3 to 4 लोब्स. हियर यू विल गेट 2 लोब्स. मतलब न्यूक्लियस तो है लेकिन वो 2 डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है. सो इट्स समथिंग लाइक दिस, 2 लोब्स, एक ये, इस तरीके से. देन यू हैव साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, दैट वी नो दैट इट बिलोंग्स टू द ग्रैन्यूल. इसमें है तो उसके अंदर ग्रैन्यूल्स तो होंगे ही, तो ये भी देखा. उसके बाद अगर इसमें आप एक डाई यूज़ कर रहे हो, इयोसिन नाम का एसिड डाई, दिस इज अ एसिडिक डाई, देन इट विल चेंज इट्स कलर इनटू डार्क रेड. Try to understand, it will change its color into dark red if you are putting a acidic dye which is named as eosin. अच्छा, और दूसरी बात, जो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं, वो ग्रैन्यूल्स जो हैं वो जो न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स से थोड़ी उनकी साइज़ लार्जर है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द फिगर, यू कैन गो थ्रू द डायग्राम, तो यू विल गेट टू नो जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं वो थोड़े लार्जर साइज़ हैं देन न्यूट्रोफिल्स. क्लियर? एंड व्हाट इज़ द फंक्शन तो बेसिक फंक्शन सभी WBC का यही रहेगा कि वो एनगल्फ करता है बैक्टीरिया. बट एट द सेम टाइम इसिनोफिल का ये भी है कि इट सीक्रीट सम एंटीटॉक्सिन्स, सीक्रीट करता है कंटिन्यूसली. आपके बॉडी में कोई टॉक्सिन का मतलब होता है जहरीली चीज़ मतलब नॉट एग्जैक्टली जहर, इट इज़ लाइक टॉक्सिक सब्सटेंसेस. आप कोई खाना भी ऐसा खा लेते हो जिसमें टॉक्सिसिटी होती है, जिसमें थोड़ा सा toxicity means you have more content of negative things. सो यू कैन टेक, अगर वो ले लेते हो तो उस समय इसिनोफिल्स एक तो अपना खुद का एंटीटॉक्सिन सीक्रीट करता है ताकि उस टॉक्सिक सब्सटेंस से लड़ पाए आपकी बॉडी. और उसके पास स्पेशली आपकी टॉक्सिसिटी कब बढ़ जाती है, जब आपका जैसे फ्रॉम फ्यू डेज आई एम गेटिंग एन एलर्जी ऑफ कंटिन्यूसली इचिंग. तो इचिंग करते समय इच होता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एलर्जी. अब इस एलर्जी से, अब किस चीज़ से एलर्जी है, सपोज फॉर एग्जांपल डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट से एलर्जी है, इसके कारण कौन हमारे बॉडी में, मैं तो डस्ट में रोज़ रहती हूँ, रोज़ डस्टी चीज़ों को हम लोग हाथ लगाते हैं, लेकिन क्यों ये एलर्जी आज ही हो रही है, क्यों ये इचिंग आज ही हो रही है? क्योंकि उससे पहले हमारे इसिनोफिल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एंटीटॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते जा रहे हैं जो आपके एलर्जिक टॉक्सिन्स के साथ लड़ते रह रहे हैं. लेकिन इस बार
इसिनोफिल्स उतने वीक हैं कि वो अपने एंटीटॉक्सिन्स को ज़्यादा मजबूती से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न यू आर फेसिंग एलर्जी। अब कोई कोई बोलता है कि यार आई हैव एन एलर्जी, बट एलर्जी क्या आपको जन्म से होती है क्या? नहीं, इट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एलर्जी आ जाती है, ठीक है। तो इतना टाइम आपको इसिनोफिल्स बराबर चल रहा था, लेकिन अभी इसिनोफिल्स आपके एंटीटॉक्सिन बराबर से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हो सकता है शायद उसके कारण एलर्जी हो, ठीक है। तो यही है कि इसिनोफिल्स आपका एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अगेन वी नो दैट ऑल आर these things are produced in bone marrow, so no change in this, they are produced in bone marrow. We will jump on to our third, that is called as basophils. basophils अगर आप देखोगे तो सबसे कम मात्रा में WBC में जो मौजूद है that is called as basophils, that is around 0.4% just. तो न्यूक्लियस जो है वो लार्ज है, indistinctly lobed. indistinctly lobed मतलब क्या होता है कि अगर आप ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो ये आप दिख रहे हो कि ये दो लोब्ड हैं, समझ में आ रहा है ना कि दो कंपार्टमेंट हैं न्यूक्लियस में, लेकिन यहाँ पे इनडिस्टिंक्टली लोब्ड का मतलब होता है कि इस तरीके से। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये एक लोब है, ये एक लोब है, बट वी विल कॉल इट एज दैट इट इज़ इनडिस्टिंक्टली लोब, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि दो अलग कंपार्टमेंट्स हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। और अगर इसके ग्रैन्यूल्स को अगर आपने बेसिक डाई मिथेलिन के साथ कर दिया, मिथेलिन इज़ अ बेसिक डाई, अगर उसके साथ अगर ट्रीट कर दिया तो इसके ग्रैन्यूल्स भी कलर चेंज करते हैं। क्लियर? एंड देन वी हैव व्हाट इज़ द मेन फंक्शन। अब फंक्शन क्या है? इट रिलीजेस, आई विल क्लियर ऑफ दिस सो दैट ओके। अब इसका फंक्शन क्या है? ये रिलीज़ करता है एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन बोलो या हिस्टामाइन बोलो। अब हिस्टामाइन क्यों ज़रूरी है आपके बॉडी में? क्योंकि हिस्टामाइन क्या करता है कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। अब ब्लड वेसल्स का डायलेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं ऑल द टाइम, दैट मीन्स यू आर फेसिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। सो ब्लड वेसल्स आपके थोड़े डायलेट होना ज़रूरी है, और वो कौन करता है? तो वो करता है एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन रिलीज़ कौन करता है? तो हिस्टामाइन भाई आपका रिलीज़ करता है मेन बैसोफिल्स। आपके बॉडी में जो WBC है उसका एक टाइप है बैसोफिल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ग्रैन्युलर के हम लोग ने 3 टाइप्स किए हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स। क्लियर? ओके, देन आई विल जंप ऑन टू माय नेक्स्ट स्लाइड एंड विच सेज अबाउट द नॉन ग्रैन्युलर टाइप्स। ओके, इज इट विजिबल? क्लियर? ओके, सो नॉन ग्रैन्युलर टाइप में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। नॉन ग्रैन्युलर टाइप वी हैव लिम्फोसाइट्स, अराउंड 30% आपके बॉडी में WBC है के हैं तो उसमें 30% आपके लिम्फोसाइट्स हैं, एंड देन यू हैव मोनोसाइट्स। एंड एज इट सेज नॉन ग्रैन्युलर, नॉन ग्रैन्युलर मतलब इसके साइटोप्लाज्म बहुत ही बेसिक प्लेन है, इसमें कोई ग्रैन्युल्स मौजूद नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि लिम्फोसाइट्स आपने बोल दिया, लेकिन इसका मेन फीचर क्या है? तो लिम्फोसाइट का फीचर ये है कि आपके पूरे WBC के जितने भी टाइप्स हैं उससे सबसे छोटा में छोटा टाइप है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और उसका सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, जैसे आपको पता है कि इनके जो न्यूक्लियस हैं, इनके न्यूक्लियस लोब्ड नहीं है, कंपार्टमेंट में डिवाइडेड नहीं है, दे हैव अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। सो लिम्फोसाइट हैज़ अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, देन इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। वी नो वेरी वेल दैट एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में बहुत ही ज़रूरी हैं। इफ़ यू हैव व्हाट आर एंटीबॉडीज़? अब एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में कोई टॉक्सिन आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए ब्लड को, WBC को एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़, ठीक है। वो आपके प्लाज्मा के थ्रू रन करके आपके जर्म्स को या आपके पॉइजन को या आपके टॉक्सिक सब्सटेंस को लड़ता है। सो एंटीबॉडीज़ आर वेरी वेरी एसेंशियल। एंटीबॉडीज़ कैन एक्ट एज एंटीटॉक्सिन्स ऑल्सो, सो देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडीज़ एंड एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। So this produces antibodies, and then we have where they are produced. As we have seen our previous part, that is granular WBCs, they are all produced in bone marrow. But here some are produced in bone marrow, some are also produced in the lymphatic glands.
ठीक है। लिम्फेटिक ग्लैंड्स बोले तो क्या आपके टॉन्सिल्स हो गए, तो टॉन्सिल्स भी आपके ग्लैंड हैं, तो दे आर ऑल्सो लिम्फ, दे आर फिल्ड विथ लिम्फ, तो दे आर द लिम्फेटिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है ये। Then we have our fifth and the last type of WBC which is called as monocytes. मोनोसाइट्स आपके अराउंड 5.3% तक आपके WBC में मौजूद रहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? न्यूक्लियस लार्ज बट इट इज़ किडनी शेप्ड। किडनी शेप मतलब कुछ इस तरीके से, गेटिंग माई पॉइंट। एट द एंड किडनी शेप हो गया, एंड देन वी हैव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैक्रोफेजेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैक्रोफेजेस? जब ये देखता है कि अरे भाई हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ये अपने आप को एक बड़े पार्ट में एक बड़ा WBC बना देता है। सो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेज। व्हाट इज एक्चुअली अ मैक्रोफेज? मैक्रोफेज इज अ लार्ज WBC, इज नथिंग बट इट्स अ लार्ज WBC। तो अपने आप को वो गट्टा करके एक लार्ज WBC बना देता है, ताकि इट हैज़ द एबिलिटी टू टेक अप ऑल द टू परफॉर्म फेगोसिटोसिस और टू एनगल्फ द बैक्टीरिया, टू इंजेस्ट द जर्म्स। तो ये अपने आप को और मजबूत बना देता है मैक्रोफेजेस फॉर्म में। क्लियर? सो मैक्रोफेजेस, अगर आपके आया कि मैक्रोफेजेस आर बॉर्न फ्रॉम वेयर, सो दे आर बॉर्न फ्रॉम मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स अपने आप में से मैक्रोफेजेस बनाते हैं, बड़े बड़े WBCs बनाते हैं, बड़े बड़े साइज में बनाते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन? इट इंजेस्ट जर्म्स, एंड वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड? दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। इज द पॉइंट क्लियर? So this is the appearance. I have given you the pic so that you can just go through with the appearance also. In your textbooks also very well diagrams are given. You just can go through with those. Clear? Okay. Then we have function of WBC. I hope this thing is clear. The site is clear. ओके, देन वी हैव फंक्शन ऑफ WBC। इसमें मैं बहुत बार मेजर फंक्शन बता चुकी हूँ, दैट इट इज़ फेगोसिटोसिस। फेगोसिटोसिस इज व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मोस्ट WBCs एंड पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स engulf the solid substances or the bacteria or the germs, ठीक है। अब an abnormal increase in WBC counts about 50,000 or more per cubic millimeter indicates some infection in the body। अगर आपके बॉडी में एक झटके से WBC बढ़ गए हैं, तो वो बढ़ते क्यों हैं ये भी जानना ज़रूरी है। वो इसलिए बढ़ते हैं ताकि वो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि आपके बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी आई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तब वो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तब हम लोग का WBC ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एंड दैट्स द रीज़न इट इज़ सेड दैट WBC प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इम्यूनिटी एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मेजर डिफेंस सिस्टम इन योर बॉडी, ठीक है। एंड देन वी हैव phagocytosis is clear. Then WBC, it is very helpful during inflammation. अब what is inflammation? जैसे for example आपके बॉडी में इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो गया, पेन आ गया या रेडनेस आ गई, सो दिस इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? हो सकता है आपके टिश्यू स्वेल हो गए हैं, या हो सकता है कुछ इंजरी आई है टिश्यूज़ में, एंड एट दैट पॉइंट इन्फ्लेमेशन अकर्स, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी नहीं आपको पेन महसूस हो, लेकिन वो इन्फ्लेम्ड आपको इन रेडनेस आएगी या अनईजीनेस होगा। सो इन्फ्लेमेशन में भी आपके WBC का मेजर रोल है, और स्पेशली कौन से WBC? तो मोनोसाइट्स का मेजर रोल है यहाँ पे, ठीक है। मोनोसाइट्स एंड इवन न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो। व्हाट दे डू? वो ब्लड कैपिलरीज से निकल जाते हैं। एट द टाइम व्हेन दे सी दैट योर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फ्लेमेशन, व्हाट दे विल डू इज दे विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। एंड हाउ दे विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज? दे विल स्क्वीज आउट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायपेडेसिस। गेटिंग माई पॉइंट? डायपेडेसिस, इट इज SIS, यस, डायपेडेसिस। नाउ डायपेडेसिस ये प्रोसेस है जहाँ पे आपके WBC स्क्वीज आउट करके ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपन्स? दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड डिस्ट्रॉय द सेल्स, ठीक है। एंड व्हेन दे एनगल्फ द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसिटोसिस। क्लियर? सो इन्फ्लेमेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। देन यू हैव फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंड एज आई सेड यू द एंटीबॉडीज़
plays a very major role. And if your body is not producing those antibodies, then vaccinations are there where they put in the weak and the dead end germs, वीकेंड जर्म्स या डेड जर्म्स आपके बॉडी में पुट इन करके एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करवाते हैं ताकि आप इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से लड़ पाएँ, ताकि आपकी बॉडी बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे. सो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बॉडी में WBC प्रोड्यूस करता है. Getting my point? And now these days, if coronavirus is there, so our body is not able to produce antibodies against such kind of virus, and that's the reason we are waiting for the vaccines to come. Are you getting my point? So formation of antibodies in your body also, WBC has certain limitation of producing such kind of antibodies. It is familiar with some kind of viruses. It is not familiar with a virus called as corona. So that's the reason WBC is not able to produce antitoxins and antibodies against it, and because of which we are waiting for the vaccines to come up. ठीक है, बाकी सबका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है आपका WBC. Clear? So I'll stop it here. Hope you have understood the chapter. Understood the topic of WBC. We'll continue the next topic, which is called as blood platelets, in my next video. Okay, God bless.